السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو سے تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ائمہ کرام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، روزمرہ کی دعائیں، بچوں کے لیے نماز اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت ہو سکے، آڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم پیش کر رہے ہیں بہنوں کے لیے تحفہ، ایک عرب مصنفہ امل بنت عبداللہ کی اس اہم ترین اور انوکھے اسلوب کی کتاب ہدیتی الیک کو پہلے اردو زبان میں ڈھالا گیا، پھر اس کی ڈرامائی تشکیل کی گئی۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے اپنے گھر کی بھی، بلکہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ کی کہانی، جو ان گنت گھروں میں پیش آنے والی ایک سنگین صورتحال کی تصویر کشی کرتی نظر آئے گی۔ یہی نہیں، یہ سی ڈی ایسے گھرانوں کی اس الجھن کا حل بھی بتائے گی۔ جی ہاں، اپنی زبانی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی زبانی۔ اس کو اگر آپ اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیں گے تو ایسی تمام الجھنوں سے نجات حاصل کر لینا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہ جائے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے دارالسلام اسٹوڈیو سے بہنوں کے لیے تحفہ۔ ٹھہریں فائزہ، آپ ابھی نہیں جا سکتے۔ جی بھی صاحبہ، آپ نے کیا فرمایا؟ میں ابھی جا نہیں سکتی؟ ہاں فائزہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ جی بہتر۔ ہاں بیٹھے بیٹھی فائزہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کلاس کے دوران آج آپ کھوئی کھوئی رہی، پہلے میں نے کبھی ایسی بات محسوس نہیں کی۔ آپ تو پوری کلاس میں ہونہار طالبہ ہیں، اور میں کوئی سوال پوچھتی ہوں تو آپ فر اس کا جواب سنا دیتی ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ میں نے 3 بار آپ سے سوال پوچھا لیکن آپ اٹک گئیں۔ صاف ظاہر ہے آپ دماغی طور پر کلاس میں حاضر نہیں تھی۔ فائزہ، آپ کو کسی الجھن نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ سبق کے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہے مس۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں تو وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں جس نے ہماری ذہین طالبہ کے چہرے کا سکون چھین لیا ہے، پیشانی پر بل ڈال دیا ہے۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت کسی خاص بات کا پتہ دے رہی ہے۔ وہ میں کیا بتاؤں مس صاحبہ، میں کیسے بتاؤں؟ نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو بات بھی ہے کھل کر بتا دیں۔ اوہو، میں آپ کی ہمدرد ہوں، رازداری کا بھی وعدہ کرتی ہوں۔ اوہو، آپ تو رونے لگی۔ میں بھلا وہ سب کیسے بتا سکتی ہوں آپ کو؟ کیوں؟ حیا اڑے آتی ہے؟ سنیں فائزہ بیٹی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، ایک سہیلی کی طرح آپ کی بات سنوں گی اور ایک ماں کی طرح آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ بتائیں بھی تو بیٹا۔ جی بہتر، بتاتی ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں اتفاق سے ایک نوجوان مجھ سے ٹکرا گیا۔ سوری۔ میں نے خلاقاً کہا کوئی بات نہیں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، یقین جانیے محترمہ، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا، جیسا کہ آج کل کے چھچورے لڑکے لڑکیوں سے ٹکراتے پھرتے، بس بے خیالی میں ایسا ہو گیا۔ آپ یقیناً یہی خیال کر رہی ہوں گی کہ میں جان بوجھ کر ٹکرایا ہوں۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت صاف دل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔
مس صاحبہ، اس کی گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا. الفاظ سے خلوص ٹپکتا ہوا محسوس ہوا. نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہوا محسوس ہوا. میں نے خود اس سے کوئی بات کہنے کی کوشش نہیں کی. اچھا، اور اس کے بعد آپ کو اس کا فون آیا ہوگا، ہے نا؟ جی جی، یہ کیسے جان لیا آپ نے؟ اس کے بعد یوں ہی ہوتا ہے پیاری بیٹی. آپ کے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا. آپ بے دھڑک پوری بات بتائیں مجھے. جی اچھا، آپ کے الفاظ مجھے عجیب سا حوصلہ عطا کر رہے ہیں. میں یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے آپ سے زیادہ اس وقت میرا کوئی ہمدرد نہیں. خیر سنیے، پہلے روز اس کا فون آیا. سچ بات یہی ہے کہ اس کی گفتگو میں مجھے کوئی خرابی محسوس نہ ہوئی. پھر تو قریب قریب روز ہی فون آنا شروع ہو گیا. عجیب بات ہے، وہ فون اس وقت کرتا تھا جب میں عام طور پہ گھر میں تنہا ہوتی تھی، یا دوپہر کے وقت جب گھر کے افراد سوئے ہوتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا. کہتی جائیں، میں سن رہی ہوں. پھر تو ہم فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگے. رات گئے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. چند روز قبل اس نے کہا، فائزہ، کسی نہ کسی طرح مجھ سے ملاقات کرو تاکہ ہم شادی کے بارے میں بات کر سکیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ شادی سے پہلے ایک آدھ ملاقات کی شریعت اجازت دیتی ہے. میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ گھر سے نکل کے تم سے ملاقات کروں. تب اس نے اپنی محبت کا واسطہ دیا، لیکن میں ہمت نہ کر سکی. اس کے بعد 3 دن تک اس کا کوئی فون نہیں آیا. گزشتہ رات پھر فون آیا اور اس نے کہا، اگر تم نے آج مجھ سے ملاقات کے بارے میں نہ بتایا نا تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا. ہاں، اور اسی بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے. یہی بات ہے نا بیٹا؟ جی ہاں، یہ بھی پریشانی کی بات ہے. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے شک گزرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کا علم جو ہے وہ میرے گھر والوں کو بھی ہو گیا ہے. اچھا، میں نے ساری بات آپ کو اپنا سمجھ کر بتا دی ہے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ فکر نہ کریں بیٹا، یہاں یہ ساری بات نہیں ہو سکتی. آپ ایسا کریں، آج شام میرے گھر آئیں. اپنے بھائی سے کہیے گا وہ آپ کو میرے گھر پہنچا جائیں گے. وہاں میں کھل کر بات کروں گی. اللہ کی مہربانی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہاں، ایک غلط فہمی میں بھی دور کر دینا چاہتی ہوں. شریعت نے شادی سے پہلے ملاقات کی نہیں، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے. اچھی بات، میں چلتی ہوں، شام کو آ جاؤں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آئیے فائزہ، آئیے. شاید میں غلط وقت پر آ گئی. یہاں تو آپ کے مہمان تشریف فرما ہے. میں پھر کسی روز آ جاؤں گی. آپ غلط سمجھیں. بیٹھ جائیں. مائی جنت، آپ مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئیں. ہم چائے کے دوران اپنی بات کریں گے. فائزہ، آپ یہاں میرے ساتھ والی کرسی پر آ جائیں. ہاں بس یہ ٹھیک ہے. مگر لیکن یہ محترمائیں، انہیں میں نے بلایا ہے. بیٹا یہ میری دعوت پر آئی ہیں. پہلے میں تعارف کرا دوں. یہ فائزہ ہیں، میری ذہین ترین شاگردہ. بی بی جی، چائے حاضر ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ جائیں، مہمانوں کے لیے چائے میں خود بناؤں گی. جی اچھا. بیٹی فائزہ، میں نے ان خواتین کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ کی بات ان کے سامنے رکھوں، بلکہ انہیں اس لیے زحمت دی ہے کہ یہ اپنی زندگی کے کچھ اہم واقعات آپ کو سنائیں. ان کے تجربات کی روشنی میں تم اپنے معاملے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکو گی. یہ ہے میری ایک پرانی شاگرد صوبیہ خالد. صوبیہ پلیز، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج وہ واقعہ ایک بار پھر دہرا دیں جس نے آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی. اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا، یہ زندگی آپ کے لیے اجیرن بن جاتی. کہانیاں ہمیشہ اتفاقات سے شروع ہوتے ہیں. وہ بھی ایک اتفاق تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو معمول کے خلاف ریسیور میں نے اٹھا لیا. مطلب یہ ہے کہ میں عام طور پر ریسیور نہیں اٹھاتی، پرہیز کرتی ہوں. اور خواتین کو پرہیز کرنا بھی چاہیے. جب تک سخت مجبوری نہ ہو فون نہیں اٹھانا چاہیے.
उस रोज घर के अफराद इधर उधर थे, फोन के पास कोई नहीं था, सो मैंने रिसीवर उठा लिया। फौरन ही एक बारोब मर्दाना आवाज सुनाई दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। आप कौन साहब हैं? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ। आप शायद अब्बू के दोस्त हैं, क्या इनसे बात कराऊं? जी नहीं, मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब मुझसे? मैं नहीं जानती आप कौन हैं। मोहतरमा, फोन बंद न कीजिएगा, गलती से रॉन्ग नंबर मिल गया था। लेकिन आपकी आवाज बहुत दिलकश है, आप मुझ पर शक न करें। वैसे आपको इस तरह फोन नहीं बंद करना चाहिए था। क्या ये बदअखलाकी नहीं है? देखिए आप, चलिए आप मुझे इजाजत दें, मैं अपना तारुफ कराता हूँ। देखिए प्लीज इस बार फोन बंद न कीजिएगा। मेरा नाम शहरयार है, यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ, गुलबर्ग में रहता हूँ। मुताले के अलावा अच्छे लोगों से दोस्ती मेरा मशगला है। अब जरा आप अपना तारुफ करा दें, शुक्रगुजार रहूंगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था, होश उड़े जा रहे थे। दूसरे दिन फिर उसी वक्त फोन की घंटी बजी। मेरा दिल और जोर से धड़का। और सच तो यह है कि मैं तमाम दिन उसी के बारे में सोचती रही थी। घंटी बजते ही मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। मैंने थर थर कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। जी कौन साहब? अल्लाह का शुक्र है रिसीवर आपने उठाया। कल आपने फोन बंद कर दिया था। अल्लाह के लिए आज ऐसा ना कीजिएगा, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मेरा नाम सोबिया है, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे 2 भाई हैं, वालिद है, वालिदा है। वालिद सरकारी मुलाजिम है, बस, या और कुछ। मेरा मतलब है, क्या इतना तारुफ काफी है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल फिर फोन करूंगा। इस तरह फोन पर होने वाली गुफ्तगू से शुरू होने वाला ये सिलसिला आगे बढ़ा। मैं महसूस करने लगी थी कि शहरयार मुझसे वाकई बेपनाह लगाव रखता है। मैं भी उसके लिए दिल में मचलने वाले जज्बात को साफ तौर पर महसूस कर रही थी। चुनाचे एक दिन उसने इजहार मोहब्बत कर दिया। वो बहुत चालाक था। जब उसका फोन आता और मेरे अलावा घर का कोई और फर्द रिसीवर उठा लेता तो वो नस्वानी आवाज मुंह से निकाल कर कहता, सोबिया से बात करा दे, मैं उसकी सहेली बात कर रही हूँ। मैं उसकी इस चालाकी पर बहुत हंसती। फिर एक दिन उसने कहा, देखो सोबिया, अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब हमारी मुलाकात हो ही जानी चाहिए। नहीं शहरयार, बहुत मुश्किल है, मुझे डर लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाई इसमें डरने की कौन सी बात है? सहेली से मिलने का बहाना कर देना। मैं कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी में इंतजार करूंगा। नहीं शहरयार, ये मुझसे नहीं होगा। ओहो सोबिया, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बस मैं कल इंतजार करूंगा। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैंने ऐसा ही किया। उसने अपनी गाड़ी का नंबर और रंग बता दिया था, क्योंकि मैं उसे पहचानती जो नहीं थी। कॉलेज से निकलकर मैंने फौरन उसकी गाड़ी को पहचान लिया और उसमें जा बैठी। जो ही गाड़ी में बैठी, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा और घबराहट मुझ पर तारी हो गई। दूसरी तरफ शहरयार बहुत खुश था और मैं खौफ महसूस कर रही थी। वो खूबसूरत जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे एक शैतानी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। गाड़ी में इधर उधर की सैर कराने के बाद एक घर के सामने उसने गाड़ी रोक दी। ये तो मुझे कहाँ ले आया शहरयार? ये मेरे दोस्त का घर है। हम कुछ देर यहाँ बैठकर बातें करेंगे। आओ, डरो नहीं। लेकिन यहाँ से गुजरने वाला हर फर्द मुझे अजीब नजरों से क्यों घूर रहा है शहरयार? ये कौन सी जगह है? आओ बताता हूँ। लो सोबिया, तुम इस कमरे में बैठो, मैं अपने दोस्त से मिलूं जरा। इस कदर सजा सजाया कमरा, ऐसे कमरे तो दुल्हनों के होते हैं ना? ओहो, तुम बैठो भी, मैं अभी आया। शाबाश, डरने की जरूरत नहीं है। अजीब सा लग रहा है यहाँ सब कुछ।
ओह, ये तो साथ वाले कमरे से शहरियार की आवाज आ रही है। दबी आवाज में ये क्या कह रहा है? दरमियानी दरवाजे से लगकर सुनना चाहिए। देर ना करो खाला, मैं इसके 50,000 से कम नहीं लूंगा। बहुत जबरदस्त लड़की है। ओह, मालिक, ये मैं कहाँ फंसी? भाग सोबिया, यहाँ से भाग। उफ, मालिक, फिर क्या हुआ? बस होना क्या था, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की कि मैंने उनकी बातें सुन ली। मैं दबे पांव वहां से निकल आई और बाहर निकलते ही भाग निकली। किस्मत अच्छी थी कि चंद गलियों में चलने के बाद एक सड़क पर आ गई। वहां से एक रिक्शा पकड़ा और घर आ गई। रात को शहरियार का फोन आया। उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे अगवा करेगा और मेरी वालिदैन को बता देगा कि मैं दिन भर कहाँ रही। ये सुनकर मैं सख्त परेशान हुई। मैंने अपनी परेशानी मोहतरमा टीचर साहबा से बयान की। शहरियार ने फोन करके मेरे वालिदैन को भी मुझसे बदजन कर दिया था। ये टीचर ही थी जिनकी वजह से उनकी बदजनी दूर हुई। वालिद साहब ने फोन का नंबर तब्दील करवा लिया। इस तरह मुझे इस झंझट से निजात मिली। फायजा बेटा, आपने सोबिया की कहानी सुनी, अब दूसरी खातून से मिले। ये मोहतरमा मेरी एक शागिर्द की वालिदा है। इनकी दास्तान गम भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। मोहतरमा, आपसे गुजारिश है पूरी कहानी बयान करें। ये आज से चंद बरस पहले का वाक़या है। एक ख़ानदान की तकरीब में हमारी बेटी का राब्ता एक नौजवान से हो गया। हम उस नौजवान के बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। अपनी बच्ची को कभी कभी चोरी छुपे कुछ लिखते ज़रूर देखा था हमने। उस वक्त हम ये ख्याल करते रहे कि अपनी किसी सहेली को खत लिख रही होगी। एक सुबह हमारी बेटी गायब हो गई। रुसवाई के खौफ से हम किसी को कुछ बताने के काबिल भी नहीं थे। अभी हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में सोच ही रहे थे कि वो इंतहाई बुरी हालत में घर पहुंची। वो किसी भी तरह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसे डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उसने जुबान न खोली। और दूसरी रोज उसने बिजली की नंगी तार को छू लिया और खुदकुशी जैसा हराम काम कर गुजरी। उसका ये इकदाम बता रहा था कि उस पर क्या क्या मत गुजर चुकी है। जिस भेड़िए ने ये काम किया था उसकी खतूत उसके कमरे से मिल गई। उस वक्त हमें पता चला वो चोरी छुपे उस बदकिरदार को खत लिखा करती थी। हमने पुलिस को इत्तला दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि उस दरिंदे ने उससे पहले भी कई लड़कियों को बहला फुसलाकर मोहब्बत का धोखा देकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की थी। इन बच्चियों के वालिदैन तो गैरत की खातिर खामोश रहे, लेकिन मैं क्या करूंगी खामोश रहकर, जब मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। इबरत के लिए हर माँ बाप और इस किस्म के हालात का शिकार हर बच्ची को अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार रहती हूँ, ताकि किसी दूसरी माँ पर वो कुछ न गुजरे जो मुझ पर गुजर चुकी है। किसी की बेटी ऐसे घिनौने गुनाह का इर्तिकाब न करे जो मेरी नादान बेटी ने किया। मेरे मालिक, ये क्या हुआ? इधर देखें फायजा, ये मेरी तीसरी मेहमान है। इनकी कहानी भी सुनने के लायक है। जी, मैं हमतन गोश हूँ। एक एक लफ्ज गौर से सुन रही हूँ। सुनो बेटी, मैं एक बदनसीब औरत हूँ। ये बदनसीबी मेरी अपनी गलती का नतीजा थी। ये दास्तान उस वक्त शुरू हुई जब अपने मोहल्ले के एक नौजवान के इशारों कुनाइयों को मोहब्बत समझ बैठी। फिर वो मुझे फ़ोन करने लगा, बहाने बना बना कर हमारे घर भी आने लगा। इस तरह हम में ताल्लुक़ बढ़ा। हमारे ताल्लुक़ का इल्म घर वालों को हो गया। वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं उससे शादी पर अड़ गई। और इसकी यही वजह थी
میں बेहुदा किस्म के नावल पढ़ा करती थी, अफसाने पढ़ती थी, टीवी देखती थी, वीसीआर पर फिल्में देखती थी। इन शैतानी चीज़ों ने मुझे ख्याली दुनिया का इंसान बना दिया। मैं यही समझती थी मोहब्बत का ये रूप ही असल रिश्ता है। वालिदैन ने भी महसूस कर लिया कि अगर उन्होंने मेरी जिद न मानी तो कहीं मैं उनकी रुसवाई का सबब न बन जाऊं। चुनाचे हमारी शादी हो गई। ओह, इसके बाद क्या हुआ? हाँ बेटी, सुनती जाओ। चंद माह बाद ही मेरे महबूब शौहर साहब ने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया, पर पुर्जे निकालने लगा। वो बहुत दिल फेंक किस्म का आदमी वाकई हुआ था। उसके जिन इशारों कनायों पर मैं फरेफ्ता हुई थी वो तो उसकी फितरत में शामिल थे। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थे। मैंने उससे उसके वो जुमले याद दिलाए, वादे याद कराए। वो सुनकर हंसा और कहने लगा, वो तमाम जुमले और वादे तो फला फला फिल्म और ड्रामे के थे। ये दुनिया तो बस एंजॉय करने के लिए है। जिस तरह इंसान एक ही खाने पर इक्तफा नहीं कर सकता, इसी तरह मर्द एक ही औरत को ज्यादा अरसा गवारा नहीं कर सकता। उसे तो भंवरे की तरह हर फूल का रस चूसना चाहिए। दरअसल वो बहुत वाहियात किस्म का इंसान था। वो दूसरी लड़कियों को घर लाने लगा। मेरे तन बदन में आग सी लग जाती, लेकिन उसे मेरी परवाह कब थी। ये हालात मैंने अपने घर के अफराद को सुनाए। उन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया कि ये थी तुम्हारी पसंद जिसके लिए तुम जान देने पर तुल गई थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था। मेरी आंखों पर पर्दे पड़ते थे। आंटी, फिर इसके बाद क्या हुआ? ये टीचर साहब हमारी मोहल्लेदार हैं। इनके घर हर हफ्ते कुरान मजीद का दर्स होता था, अब भी होता है। शौहर की बेरुखी बढ़ी तो मैं अपनी परेशानी कम करने के लिए इनका दर्स सुनने लगी। इससे मुझे हद दर्जे सुकून मिलने लगा। मैंने इन्हें गमगुसार पाया तो अपना दुखड़ा इनसे बयान कर दिया। बहुत खूब आंटी, फिर? इस दौरान मेरे शौहर साहब ने एक और रुख बदला। अब वो अपने दोस्तों को घर लाने लगे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें भी खुश किया करूं। ये सूरत-ए-हाल बदतर थी, बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने फौरन इन्हें बताया। ये मेरे वालिदैन से मिली। इस संगीन सूरत-ए-हाल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उस बेहुदा इंसान से मुझे तलाक दिलवाई। अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। मोहल्ले के लोगों को उसकी करतूतों का बखूबी इल्म था। सब ने मुझसे हमदर्दी की। इद्दत गुजरने के बाद टीचर साहिबा ने मेरी शादी एक और शख्स से कर दी। मेरे ये शौहर इंतहाई नेक, खुश इखलाक, सौम सलात के पाबंद हैं। अब मेरी जिंदगी पुरसुकून है। मैं हर तरह से मुतमईन हूँ। ओह, आप सबकी कहानियां सुनकर तो मेरी आंखें खुल गई हैं। अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, आपके बारे में बताया कि आप एक दौराहे पर खड़ी हैं, कहीं मेरी तरह जिंदगी तबाह न कर बैठें, लिहाजा आकर इन्हें अपनी कहानी सुनाऊं। सो चली आई सुनाने। बल्कि मैं तो आप जैसी हर खातून को ये कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और फायजा, मुझे उम्मीद है इन खवातीन के तल्ख तजुर्बात आपकी रहनुमाई के लिए काफी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं एक दो बातें पूछना चाहती हूँ। जरूर, क्यों नहीं, जरूर पूछें बेटा। क्या इस तरह के सभी वाकयात में नाकामी ही होती है, कोई कामयाबी नहीं होती? फैजा, आपके सवाल का जवाब ये मोहतरमा देंगी। ये माहिर नफ्सियात है। जी हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। मेरा तजर्बा और इल्म आपके सवाल का जवाब नफी में देता है। इसकी चंद वजूहात हैं। जब मर्द और औरत अपने माहौल से बगावत करके एक दूसरे को अपनाते हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। औरत ख्याल करती है इसने मर्द की मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इसलिए इसका ज्यादा हक है। इसकी मोहब्बत की कदर दुनिया की हर चीज से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ मर्द भी ऐसा ही सोचता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से हकूक हासिल करने की तगोदौ में रहते हैं, जबकि हकूक अदा करना वो अपनी मोहब्बत की तौहीन समझते हैं। इस खुदगर्जाना ज़हनियत से इनके दरमियान छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक होने लगती है। नोक-झोंक फिर झगड़ों की सूरत इख्तियार कर लेती है। नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में घर से भागकर या वालिदैन की नाराजगी मोल लेकर जो शादियां की जाती हैं वो मुश्किल ही कामयाब होती हैं।
कामयाबी का तनासुब आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर एक और वजह से भी ऐसी शादियां नाकाम होती हैं। बात शकी मिजाज शौहर ख्याल करने लगते हैं जो लड़की अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत को लात मारकर महज चंद दिनों या चंद माह की आशनाई के बाद भाग खड़ी हुई, वो जरूर बदचलन होगी। वो मेरे साथ किस तरह पाकबाज रहेगी। ऐसे मर्द एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या वो अपनी बीवी के मुकाबले में शक्ल सूरत के लिहाज से कमतर होते हैं। वो इस मनफी सोच का बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। वो बात बे बात बीवी पर शक करते हैं। मसलन कोई फोन आ जाएगा तो वो सोचेंगे इसके तो सारे रिश्तेदार इससे नाराज हैं, अब फोन किसका आया है। इसकी इस मिजाजी कैफियत से बीवी चिढ़ जाती है और यूं मामला बिगड़ता चला जाता है, बात बनाई नहीं बनती। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। जी हाँ, एक तीसरी वजह भी सुन ली। अगर मर्द की माली हालत अच्छी ना हो या वक्ती तौर पर तो ठीक हो, लेकिन बाद में अखराजात बढ़ जाने से माली दुश्वारियां पैदा हो जाएं, तो दोनों की मोहब्बत का बहुत जल्द खात्मा कर देती हैं। खानदान में तो इनकी मदद करने वाला कोई होता नहीं। दोस्त अहबाब भी आहिस्ता आहिस्ता कर्ज दे देकर तंग आ जाते हैं, इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह मामला और बिगड़ने लगता है। यही वो वक्त होता है जब दोनों को अपनी हमाकत का एहसास शिद्दत से होने लगता है। फिर हालात की रुख इख्तियार करते हैं। औरत मर्द को ताना देती है, अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो शादी रचाने की क्या जरूरत थी। इस पर मर्द कह उठता है, तुमने भी तो कहा था तंगी तुर्शी हर हालत में साथ दूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपने फैशन और चटोरपन से ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत की ये तस्वीर किस कदर भयानक है। अभी और सुनो फायदा। ऐसे मियाँ बीवी कभी कभी जराइम पेशा बन जाते हैं। वो ना सिर्फ खुद को बर्बाद करते हैं बल्कि मुआशरे में अनारकी और गलाजत फैलाने का सबब भी बनते हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, ऐसी मिसालें सामने आई हैं। फिर एक और मसला भी है। बाज़ औक़ात ऐसे मियाँ बीवी या दोनों में से किसी एक की अपने वालिदैन से सुलह हो जाती है। आमतौर पर मर्द के घर वाले ऐसा करते हैं और ये अपनी बहू के बारे में दिलों में कदूरत रखते हैं। ख्याल करते हैं कि इसने इनके बेटे को बहकाया, इनसे छीना। बाद घरानों में माँ पहले ही तय कर लेती है कि बेटे का रिश्ता फलां अजीजा से करूंगी, लिहाजा वो बेटे की पसंद को किसी तरह कबूल नहीं करते। बहुत जल्द लड़की का जीना हराम कर देती हैं। अब या तो लड़की इस घर में बदतरीन जिंदगी बसर करती है या फिर तलाक तक नौबत पहुंचती है। मतलब ये कि दुनिया इनके लिए जहन्नुम का नमूना बन जाती है। मुझे दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही है। ये अच्छा है। और सुने, ऐसे मियाँ बीवी अक्सर बेयारो मददगार होते हैं। इनके अजीज रिश्तेदार मुश्किलात में साथ नहीं देते। उस वक्त मोहब्बत की ये शादी पूरी ही तरह जंजाल महसूस होती है। इन बातों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहब्बत की शादियां नाकाम क्यों होती हैं। इसमें शक नहीं, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपने जिस हमदर्दी और खुलूस से अपने तजर्बात बयान किए हैं, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक सवाल पूछे बगैर नहीं रह सकती। हाँ हाँ, जरूर पूछें फायजा। हम यहाँ इसीलिए तो जमा हुई हैं, आपके जहन में कोई उलझन न रहे, कोई सवाल न खटके। सवाल ये है कि ये मोहब्बत क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने जिनसे मुखालिफ में जो कशिश रखी है वो तो फितरी है। इस कशिश में अगर खुलूस शामिल हो जाए तो क्या यह मोहब्बत के जुमरे में नहीं आता? मुझे अंदाजा था फायजा आप इस किस्म का कोई सवाल पूछेंगी। यहाँ एक और तजुर्बेकार खातून मौजूद है, आपके सवाल का जवाब वो देगी। ये एक बड़ी जामे की मुअल्लिमा है, दीन का वसी इल्म रखती है। जी हाँ, क्यों नहीं। अर्ज करती हूँ बेटी फायजा, बात दरअसल ये है कि माँ बाप, बहन भाइयों, अजीज रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में जो मोहब्बत और ताल्लुक होता है वो कभी मुतनाज़ नहीं बनता। मसला सिर्फ उसी मोहब्बत से पैदा होता है जिसके मुताल्लिक आपने सवाल किया। दरअसल ये इंसान के जिनसी जज्बात का मामला है। जिस तरह खाना पीना, सोना, आराम करना इंसान की ज़रूरत है, इसी तरह जिन्स भी ज़रूरत है। जिनसी जज्बे की तस्कीन इंसान का हक है। लेकिन जिस तरह इंसान खाने पीने में एहतियात करता है, कोई जहरीली चीज़ नहीं खाता, बदजायका चीज़ नहीं खाता, इसी तरह जिन्स के मामले में एहतियात लाजिम है। बस अगर इस पहलू पे इंसान गौर कर ले तो वो सवाल हल हो जाता है जो आपके जहन में पैदा हुआ। अब आपको ये बात वाज़ी हो गई होगी कि इस मोहब्बत का ताल्लुक ईसार और कुर्बानी से नहीं, सिर्फ जिन्स से है। अगर आप में से किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो आगाह करें। मोहतरमा, अगर मर्द और औरत की मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ जिन्स से है
तो फिर महबूब के लिए कुर्बानी और इसाअत की जो बेशुमार दास्तानें सुनने में आती हैं, उनकी हकीकत क्या है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मर्द और औरत के ताल्लुक से जो मोहब्बत वजूद में आती है, इसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं होता। ये जज्बा तो दो चोरों के दरमियान भी हो सकता है। दरअसल जब कभी इंसान किसी दूसरे के एहसान तले रहेगा, उसकी नेक फितरत उसे कुर्बानी पर उभारेगी। यही जज्बा अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद है। लेकिन देखना यह है कि जिस बुनियाद पर यह मोहब्बत वजूद में आ रही है, वो क्या है। मसलन वालिदैन और औलाद के दरमियान जो मोहब्बत है, उसकी बुनियाद वालिदैन के नज़दीक ये है कि औलाद उनके वजूद का हिस्सा है, उनकी नेकनामी, पहचान और बुढ़ापे में सहारे की बाइस है। जबकि औलाद के लिए वालिदैन से मोहब्बत की बुनियाद ये है कि वो इनके वजूद का बाइस बने हैं। उनकी परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन पर डाली है। इसी तरह मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक की असल वजह एक दूसरे से जिस्मानी और रूहानी सुकून का हुसूल है। कुरान करीम में इस पहलू को इन अल्फाज में वाज़ेह किया गया है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमता। यानी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, इसीलिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करती। ये सूरह रूम की आयत है। चुनांचे ये बात तय है और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। कुरान की शहादत आ जाने के बाद इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए कि हर मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक और मोहब्बत की असल बुनियाद जिन्स है, और जिन्स की तस्कीन के लिए एक मुसलमान को उन तमाम हुदूद व क़ुयूद का पाबंद होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर की हैं। चुनांचे इस बारे में अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है कि जिनसी ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ निकाह के जरिए उस्तवार किया जा सकता है। मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत भी निकाह के बाद ही होती है, न कि निकाह से पहले। बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, और वो ये कि मोहब्बत का इजहार दरअसल मर्द और औरत का एक दूसरे से जिनसी राहत हासिल करने का खूबसूरत इजहार है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इकरार मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी करते हैं। ओहो, मैं महसूस कर रही हूँ सोबिया साहिबा इस मौके पर आप कुछ पूछना चाहती हैं, तो जरूर पूछिए। जी हाँ, शुक्रिया। आपने मेरी ज़हनी कैफियत को भांप लिया। आप वाकई माहिर नफ्सियात हैं। यहाँ ज़हन में सवाल उभरता है कि इस्लाम एक तरफ तो ये कहता है कि जिन्स का जज्बा एक हकीकी जज्बा है और उसके लिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत का दायरा पैदा किया, साथ ही वो कहता है कि इस जज्बे को निकाह के बाद ही पूरा किया जा सकता है। सवाल ये है कि इससे पहले क्या इंसान नहीं होता? इसके दिल में जिनसी जज्बे की तस्कीन की ख्वाहिश नहीं होती? जिनसे मुखालिफ के लिए मोहब्बत पैदा नहीं होती? सोबिया साहिबा का सवाल अहम है। अब मैं देख रही हूँ कि फायजा के चेहरे पर भी ये सवाल सुनकर मुस्कुराहट उभरी है। गोया इनके जहन में भी ये सवाल उभरा था, और सोबिया साहिबा ने यह सवाल पूछकर गोया उनके दिल की बात कह दी है। लिहाजा आपसे दरखास्त है, इसके जहन में पैदा होने वाली इस खलिश को दूर करें। यहाँ मुझे एक वाकया याद आ गया। क्या बताऊं, उस बच्ची पर क्या कयामत गुजर गई थी। लेकिन फिर एक शख्स सामने आया, उसका किरदार मुझे आज तक याद है। एक वो लड़का था जो उस बच्चे की जिंदगी में चोर रास्ते से दाखिल हो गया। एक वो था जिसने सबकी मौजूदगी में उसे अपना लिया। मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं तफसील से ही सुना दूं, इस तरह हमारी बेटी फायजा और ज्यादा मुतमईन हो जाएगी। अपनी कहानी उस बच्ची ने मुझे खुद सुनाई। जब उसके साथ वो सानिहा पेश आया तो दुनिया उसके लिए तारीख हो गई। उसे कुछ सुझाई न दिया। उनके घराने में पर्दे का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। जिस अजीज रिश्तेदार का जी चाहता मुंह उठाए चला आता। वो लड़का तो फिर उसके वालिद के गहरे दोस्त का बेटा था, उससे पर्दा कौन करता। नतीजा ये कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुए तो फिर आना जाना और बढ़ा। फिर तो नौबत यहाँ तक पहुंची कि लड़का बगैर किसी बहाने के भी आने लगा। माँ बाप ने कोई तवज्जो न दी। उन्होंने यही ख्याल किया दोनों पढ़े लिखे हैं, जदीद दौर के हैं। इस जदीद दौर में तो लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते ही हैं, और फिर इसमें बुराई भी क्या है।
अगर उन्होंने पसंद किया तो दोनों की शादी कर देंगे। सच तो ये है कि लड़की के वालिदैन को वो लड़का बहुत पसंद था। उनका भी यही ख्याल था, अगर उसके वालिदैन की तरफ से रिश्ता आ जाए तो वो फौरन हाँ कर देंगे।